Hello students, I Kanishka Kumar Dasa welcome you to your favorite English class. Students, we have already discussed about sentences. पिला माने आमे sentence विषय आलोचना करि सारिछु. Sentences are of three kinds. वाक्य साधारणतः तीन प्रकार. Simple sentence, complex sentence and compound sentence. We have already discussed about simple sentences and their kinds. आमे simple sentence रो प्रकार विषय मध्य आलोचना करि सारिछु. Now come to discuss about complex sentence. पिला माने आसो complex sentence विषय आलोचना करिबा. A complex sentence has one main clause and other subordinate or dependent clauses. गोटे simple sentence रो गोटे main clause अछि आउ केतेक subordinate बा dependent clause अछि. ताहले ए जो main clause विषय विशेष आलोचना में परवर्ती वीडियो गुडी करे करिबा. आजिर वीडियो रे आमे सबऑर्डिनेट क्लॉज विषय आलोचना करिबा. सबऑर्डिनेट क्लॉज गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रो सबऑर्डिनेट क्लॉज हेउची डिपेंडेंट क्लॉज. ये डिपेंड करे निर्भर करे निर्भरशील वाक्य ये मेन क्लॉज ऊपर निर्भर करे. एहाकू डिपेंडेंट क्लॉज मध्य कहंती. सबऑर्डिनेट क्लॉज हेउची डिपेंडेंट क्लॉज. ए सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर ऑफ थ्री काइंड्स. ए सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार. प्रथमटी हेउची नाउन क्लॉज. द फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज. सेकंड वन इज रिलेटिव क्लॉज. द्वितीयटी रिलेटिव क्लॉज. एंड थर्ड वन द एडवर्ब क्लॉज. तृतीयटी एडवर्ब क्लॉज अटे. आसो आमे नाउन क्लॉज विषय आलोचना करिबा. लेट्स डिस्कस अबाउट नाउन क्लॉज. लुक एट द सेंटेंस बिलो. तोले दत्त सेंटेंस को देखो. माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी. माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी. In this sentence, a story is a noun phrase. एही वाक्य रे a story is a noun phrase. In this noun phrase, a is the article and story is the noun. एही noun phrase रे a हेउची article एवं story हेउची noun. Look at the second sentence. द्वितीय sentence को लक्ष्य करो. My grandfather told me that the queen had 4 daughters. In the second sentence, that the queen had 4 daughters is placed in the place of a noun phrase and functions as a noun phrase. द्वितीय sentence रे that the queen had 4 daughters noun phrase a story बदल रे बसी a story रो काम करूची एवं सही पोजीशन रे अछि. Here, this clause is acting as the object of the verb told. एठारे एही क्लॉज टी नाउन फ्रेज भली काम करी told verb रो ऑब्जेक्ट रूपरे काम करूची. We summarize that a noun clause is a clause acts like a noun phrase. आमे summarize कलु जे गोटिए नाउन क्लॉज हेउची क्लॉज जी ए नाउन फ्रेज रो काम करूची. It functions like the object of a verb in a sentence. एहा गोटिए वाक्य रो ऑब्जेक्ट रूपरे काम करे. Grandfather told that the queen had 3 daughters. Grandfather told that the queen had 3 daughters. Here, that the queen had 3 daughters is the object of the verb told.
एठी देख पिला माने दैट द क्वीन हैड 3 डॉटर्स एही अंशटी एक नाउन क्लॉज अटे एहा टोल्ड भाव रो ऑब्जेक्ट ऊपर काम करूची एवं ये ऑब्जेक्ट हे जाईची एही नाउन क्लॉज पुणी केउ वाक्य रे सब्जेक्ट ऊपर काम करे दिस नाउन क्लॉज functions like the subject of the verb in a sentence. उदाहरण को लक्ष्य करो. Look at the example. What she said was false. What she said was false. Here, what she said is the noun clause. एथारे what she said होची noun clause and functions as the subject of the be verb. एवं बी भाव रो सब्जेक्ट हिसाब रे एठारे काम करूची पुणी नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन रूप रे मध्य काम करे दिस नाउन क्लॉज कैन एक्ट और फंक्शंस लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन लुक एट द एग्जांपल उदाहरण को लक्ष्य करो आवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन what we eat. Here, what we eat is the noun clause. It functions as the object of the preposition on. एठारे what we eat हेउची noun clause एहा on preposition रो object रूपरे काम करूची पुणी एही noun clause गोटिए verb रो complement रूपरे काम करे Again, this noun clause functions like the complement of the verb. The question is whether he will pass the exam. The question is whether he will pass the exam. This is the example of the complement of the verb means the noun clause functions like the complement of the verb. The question is whether he will pass the examination. In this sentence, whether he will pass the examination is the complement of the verb be. एही वाक्य रे whether he will pass the examination हेउची be verb रो complement एवं complement रूप रे एठारे से फंक्शन करूची पुणी एही नाउन क्लॉज कोनोसी नाउन रो एपोजिशन हिसाब रे मध्य फंक्शन करिथाय इन अनदर सेंटेंस ए नाउन क्लॉज आल्सो functions like an apposition to a noun. Look at the example. The news that he died is true. The news that he died is true. In this sentence, that he died is the apposition of the noun news. एही वाक्य रे that he died is हेउची नाउन न्यूज रो एपोजिशन माने एपोजिशन कथार अर्थ हेउची पुनी नाउन भली ये काम करूची से न्यूज होउची नाउन से न्यूज नाउन रो एपोजिशन बा से नाउन भली काम करूची तेणु देख आमे जानिलु जे गोटे नाउन क्लॉज गोटे सेंटेंस रे विभिन्न जगह रे केतेबेले ऑब्जेक्ट जगह रे केतेबेले कॉम्प्लीमेंट जगह रे केतेबेले एपोजिशन रूप रे केतेबेले सब्जेक्ट रूप रे गोटे वाक्य रे बसुची तेणु गोटे नाउन क्लॉज गोटे वाक्य रे विभिन्न जगह रे बसी पारे एवं से विभिन्न रोल प्ले करि पारे तेणु एहाकू जेतेबेले आमे पढिबा when we will study this we have to study it carefully हमको जत्नशील होई जत्नवान होई एहाकू पढिबा को पडिबो एहाकू मेमोरी रे फिट करबा को पडिबो because this is the form of a complex sentence गोटे complex sentence रो एहा होची गोटे रूप जे किभली गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज को
सेठी से स्थान देव गोटे मेन क्लज को सेठी किमिति रखिबो आमे मेन क्लज विषय रे एहा परे परे जानिबा आहुरी बेसी ज्ञान पाइबा पई टू नो बेटर यू प्लीज स्टे ट्यून मो सहित लागि रुहंतु पिला माने मोर रेस्पेक्टेड टीचर्स माने जो माने आहुरी बेसी बेसी जानिया को चाहूचंती आपण मानकु अनुरोध जे आपण माने निश्चित भाव मो वीडियो को देखंतु रेफर करंतु पिला मानकु दियंतु से माने पढंतु आहुरी बेसी बेसी जानंतु निश्चित भाव पिला माने जीवन रे सफल हेबे एवं भलो मार्क रखी उत्तीर्ण हेबे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास।